Good morning everyone. See here question number 1 for topic admission of partner, page number 161. This is unsolved question. Vikram and Pragya share profits and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. This is the balance sheet. After that, they agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on following terms and conditions. So new partner is Avni is there. She is admitted in the business on 1st April 2018. Now this is the adjustment. Here we have to mark the adjustment in the balance sheet. So first adjustment, that Avni shall have 1/4 share in future profit. Then second one, he shall bring 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill. So here mark करेंगे adjustment number 2 for cash. Here also adjustment they are having two effects. Then third adjustment, land and building is to be valued at rupees 45,000 and furniture to be depreciated by 10%. So land and building को mark करेंगे adjustment number 3 and furniture adjustment number 3. Then fifth one, provision for bad and doubtful debts is to be maintained at 5% on sundry debtors. So debtors को mark करेंगे adjustment number 4. After that, sixth adjustment, stock to be valued at rupees 82,500. Stock को mark करेंगे adjustment number 5. After that, this paragraph is important. The capital account of all partners to be adjusted in their new profit and loss ratio, and this excess amount, that balancing amount, transferred to their loan accounts. Here we have to prepare profit and loss adjustment account, capital accounts and new balance sheet. So here profit and loss adjustment account means revaluation account. Now here we have to open these accounts, that in the books of partnership firm, profit and loss adjustment account, debit side as well as credit side, that profit and loss adjustment, this is what nominal account. After that, here we have to prepare partners capital account, debit balances, debit side and credit side. Here three partners are there, that Avni is new partner admitted into the business, and balance sheet as on 1st April 2018. This is the opening balance sheet. Opening balance sheet because what, new partner is admitted into the business. Now we have to start here. See first see the liability side. Okay, liability side, here creditors are given, so we have to enter balance sheet liability side, creditors 1,05,000. After that, capitals are there, Vikram and Pradnya. These capital balances we have to transfer to partners capital account, credit side because liability having credit balance. So by balance brought down, Vikram 75,000 and Pragya 75,000. This liability side is completed. Now come to the asset side. Say asset side, first cash balance is there. So cash बैलेंस शीट का जो कैश है वो कैश हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कितना दिया है 7,500. नाउ एडजस्टमेंट इज देयर. सी फर्स्ट एडजस्टमेंट, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब अवनी का शेयर कितना है 1/4 है. सेकेंड वन, हियर सी शैल ब्रिंग 37,500 एज हर कैपिटल एंड ₹30,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल. मतलब अवनी ने कितना कैपिटल अमाउंट लाया है 37,500 लाया है. सो कैपिटल ब्रिंग किया है इन द बिजनेस.
उसके साथ साथ भी गुडविल भी लाया है कैश के माध्यम से। तो एंट्री आती है, वर्किंग नोट में बनाएंगे हम लोग, एंट्री आती है हियर कैश ब्रिंग इन द बिजनेस। सो एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट 37,500 टू अवनीस कैपिटल अकाउंट 37,500। इसके साथ साथ गुडविल भी लाया है। सो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 एंड टू गुडविल अकाउंट डेबिट क्रेडिट 30,000। सो ये कैश का इफेक्ट यहाँ पे आएगा, अवनीस ने कैपिटल ब्रिंग किया है। सो आ गई एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश अकाउंट 37,500। और दूसरा कैश है, उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैश बैलेंस 30 प्लस 37,500, ये कैपिटल लाया है। देन तो सेकेंड इफेक्ट हो गया। फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड अवनी ने ब्रिंग किया है, इसीलिए बाय कैश 37,500। एंड सेकेंड इफेक्ट हियर कैश बैलेंस में ऐड हो गया 37,500। Here also adjustment they are having two effects. After that 30,000 as his share of goodwill. So goodwill का भी एंट्री क्या आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो यहाँ पे गुडविल में भी ये एंट्री पोस्ट हो गई। दिस इज वर्किंग नोट बाय कैश अकाउंट 30,000 बिकॉज दिस एंट्री इज देयर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो हियर बाय गुडविल में पोस्ट किया बाय कैश 30,000 और ये यहाँ पे कैश गुडविल 30,000, मतलब टोटल कैश बैलेंसेस कितना हो गया 75,000। दैट 75,000 वी हैव टू रिकॉर्ड हियर इन द बैलेंस शीट एसेट साइड, दैट इज 7,500 प्लस 37,500 कैपिटल प्लस 30,000 शेयर ऑफ गुडविल। ओके, 75,000। दिस शेयर ऑफ गुडविल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इनटू देयर सैक्रिफाइस रेशो। तो अभी ये 30,000 है, ये सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करके एंट्री आती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू प्रज्ञास कैपिटल अकाउंट 18,000। सो फर्स्ट व्हाट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो। तो पहले देखना है कि ओल्ड रेशो कितना दिया है 2:3। दिस इज द ओल्ड रेशो ऑफ विक्रम एंड प्रज्ञा। Then formula is there that sacrifice ratio of Vikram equal to new ratio into old ratio. So new ratio कितना है, अवनी का न्यू रेशो है 1/4 into old partners that is 2/5. So equal to 2/20 आ गया, ये विक्रम का आ गया। नाउ प्रज्ञा 1/4 into 3/old ratio of प्रज्ञा 3/5. So 1/4 this is the ratio of Avni into 3/5, so 320 आ गया। So 2/20 as to 3/20, मतलब sacrifice ratio कितना आ गया 2:3। So that goodwill is distributed among sacrifice ratio of old partners. So विक्रम का आ गया, यहाँ पे हम लोग sacrifice ratio goodwill amount निकालेंगे। So goodwill amount है 30,000 और सैक्रिफाइस रेशो विक्रम का कितना है 2/5, 2:3 आ गया ना, मीन्स 2 + 3 5, सो 2/5। सो विक्रम की अमाउंट आ गई गुडविल की 12,000। सेम वे प्रज्ञा की गुडविल अमाउंट इनटू प्रज्ञा सैक्रिफाइस रेशो कितना है 3/5, सो आ गया 18,000 अमाउंट। सो दैट गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस रेशो। सो वो गुडविल के इफेक्ट आ गए यहाँ पे, क्योंकि एंट्री आ गई गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल टू प्रज्ञास कैपिटल। सो बाय गुडविल 12,000 विक्रम 18,000 प्रज्ञा। और ये गुडविल का ही सेकेंड इफेक्ट वर्किंग नोट में आ गया, गुडविल अकाउंट डेबिट टू विक्रम्स कैपिटल 12,000 टू प्रज्ञास कैपिटल 18,000, मीन्स 30,000 हियर 30,000 हियर। गुडविल का इफेक्ट नील हो गया। ऐसे ये दो एडजस्टमेंट के इफेक्ट हो गया। फर्स्ट एडजस्टमेंट completed, सेकेंड एडजस्टमेंट completed. Now see here land and building is given asset side. कैश हो गया, कैश हम लोग ने एंटर किया एसेट साइड में, टोटल 75,000 आ गया। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट। सो एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 37,500।
नाउ सी द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट क्या दिया है? थर्ड एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹45,000. सो 45,000 आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे. दिस इज रिवैल्यूएशन फिगर. सो अमाउंट बढ़ गई. अमाउंट बढ़ गई मीन्स एप्रिसिएशन, तो ऐड होगा, ऐड एप्रिसिएशन. तो 7,500 कैसे आ गया? 45,000 माइनस 37,500. 7,500 एप्रिसिएशन. So appreciation means asset increase. This is what? Income. So recorded profit and loss adjustment account by land and building 7,500. So second effect also over. And see same adjustment and furniture to be depreciated by 10%. So immediately furniture भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे adjustment number थर्ड लिखा है. फर्नीचर अमाउंट कितना है? 3,000. एसेट में रिकॉर्ड हो गया फर्नीचर 3,000. डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 10%. सो लेस डेप्रिसिएशन 10% माइनस 300. आउटर कॉलम 2,700. देखो अभी यहाँ पे एसेट कम हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया मीन्स एक्सपेंसेस लॉस. सो रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर 300. So this third adjustment is completed. Now come to the next adjustment. Next plant is given. Plant no adjustment. So directly we have to write outer column asset side plant 45,000. After that furniture over. Then stock. Stock 75,000. Stock recorded asset side balance sheet stock 75,000. Stock को adjustment हम लोग ने मार्क किया है. Adjustment number 5. Here adjustment number 6, adjustment number 5 here, 4 and 5. Stock to be valued at ₹82,500. So मतलब स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है. दिस इज ऑल्सो एप्रिसिएशन. सो 82,500 आउटर कॉलम में लिखेंगे और आउटर 82,500 माइनस 75,000 आता है 7,500. दिस इज ऑल्सो एप्रिसिएशन. स्टॉक इंक्रीज. Second effect, profit and loss account credit side by stock 7,500 because this is appreciation. So this is also completed. Then debtors is there. So debtors balance sheet asset side debtors 87,000 लिखा है. Okay, adjustment देखना है. Provision for bad and doubtful debts is to be maintained at 5% on sundry debtors. Bad and doubtful debts, that is what? RDD. So reserve is created. So this is also less. This is also loss. So loss less होता है 82 here 5%. 87,000 के ऊपर 5%. 87,000 के ऊपर 5% आता है 4,350. माइनस करके अमाउंट आती है 82,650. So this is what less from debtors. So second effect, profit and loss adjustment account debit side to RDD because this is loss 4,350 because this is nominal account. So here we have to complete here. Then we have to do the total. All adjustments are over. Then we have to do the total of profit and loss adjustment account. See here credit side is more. Credit side आ गया 15,000. This माइनस डेबिट साइड आती है 4,650. 15,000 से 4,650 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आती है 10,350. दिस 10,350 दिस इज व्हाट? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. और ये भी प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा? उनके ओल्ड रेशो में. ओल्ड रेशो कितना दिया है? 2:3. मीन्स हियर we have to do that 10,350 विक्रम का ओल्ड रेशो कितना दिया है दोनों का? 2:3. सो विक्रम का आएगा 2/5. तो आती है अमाउंट 4,140. और प्रज्ञा का 10,350 इंटू 3/5. सो प्रॉफिट कितना आता है? 6,210. This is profit on profit and loss adjustment account 4,150 and 6,210. This profit on revaluation transferred to partners capital account into their old ratio
So here we have to transfer partners capital account by profit and loss adjustment account. Profit on revaluation 4,4140 एंड 6210 प्रज्ञा का आ गया, तो ये ट्रांसफ़र किया। अभी क्या करेंगे कि ये हमें टोटल करना है। डू द टोटल दिस 91,140, 99,210 एंड 37,500। Now this adjustment is important. The capital account of all partners to be adjusted in their new profit and loss ratio and excess amount transferred to their loan account. This adjustment is different, important adjustment. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, नाउ न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अभी विक्रम का ओल्ड रेशो कितना है, 2:3 स्टार्टिंग में है, 2:3 दिया है। दिस इज ओल्ड रेशो 2:3। सो ओल्ड रेशो 2/5 माइनस दिस सेक्रीफाइस रेशो हम लोग ने निकाला है स्टार्टिंग में 2/20। सो 20 एलसीएम आ गया, 5 × 4 20, 4 × 2 8, 8 - 2/20, तो 620 आ गया, 6/20। वैसे ही प्रज्ञा का ओल्ड रेशो कितना है, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस रेशो, दिस सेक्रीफाइस रेशो 320, 3/20। ओके, सो ये 3/20 माइनस किया, 20 एलसीएम आया। सो 5 × 4 20 and here 21 × 20, so 12, 3 × 4 12 माइनस 3/20, सो 920। और अवनी का भी 20 एलसीएम निकालेंगे, सो 5 आ जाएगा, सो 5/20। ओके, सो रेशो इज 6/20, 9/20 एंड 5/20। दिस इज व्हाट न्यू रेशो। अभी हमें न्यू रेशो में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो स्टार्टिंग में अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, और इसने 1/4 शेयर है तो उसने कैपिटल कितना लाया है, 37,500। सो टोटल कैपिटल करेंगे इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट इनटू हिज कैपिटल। अभी अवनी का रेशो कितना है, 1/4 है, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 4/1 इंटू 37,500। तो कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना आ गया, 1,50,000। सो विक्रम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, 1,50,000 इंटू रेशो देखो इनका कितना है, 6/20 है, 6/20, सो इंटू 6/20 45,000 कैपिटल आता है। फिर प्रज्ञा का 1,50,000 इंटू 9/20 67,500, और अवनीश का ऑलरेडी 37,500 दिया है। So this capital we transfer to here, balancing, to balance carried down 45,000, 67,500 and 37,500। और अभी ये टोटल किया है हम लोग ने। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट जैसे कि दिया है, एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। सो एक्सेस अमाउंट कहाँ पे जाएगी, देयर लोन अकाउंट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करेंगे कि प्रज्ञा का विक्रम का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 91,140 माइनस डेबिट टोटल विक्रम का 45,000, सो 46,140। दिस इज एक्सेस अमाउंट, दैट एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। वैसे ही प्रज्ञा का क्रेडिट बैलेंस है 99,210 माइनस डेबिट बैलेंस कितना दिया है, यहाँ पे आया है 67,500, माइनस किया तो रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट 31,710। दिस इज ऑल्सो एक्सेस अमाउंट। ओके, दैट एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। सो हियर वी हैव टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में। ये दिस इज बैलेंस, बिकॉज दिस इज बैलेंसिंग अमाउंट 46,140, 31,710। बोथ दिस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट साइड
सो कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया. कैपिटल अकाउंट्स विक्रम 45,000, देन प्रज्ञा 67,500, देन अवनी 37,500 हियर ट्रांसफ़र. सेकेंड इफेक्ट सेम वे पार्टनर्स लोन अकाउंट का सेकेंड इफेक्ट आ गया. लाइबिलिटी साइड पार्टनर्स लोन अकाउंट विक्रम 46,140, देन प्रज्ञा 31,710. अभी हम टोटल करेंगे. बैलेंस शीट का लाइबिलिटी का टोटल आता है. तो यहाँ पे दोनों आउटर कॉलम में अमाउंट ट्रांसफ़र किया, इसका 1,50,000 आ गया कैपिटल्स, और लोन का 77,850, और टोटल लाइबिलिटी साइड 3,32,850. और सेम वे एसेट टोटल करेंगे 3,32,850. So this question is also important. You have to solve in your notebook this question, and that different adjustment, that is what the capital of all partners adjusted in new profit sharing ratio and excess amount transfer to loan account.